مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محترم ناظرین، آپ کے بیچ میں فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس کے اوپر پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کے بعد انسانوں کو یوں ہی جانوروں کی طرح بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے پائے جاتے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہم السلام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتلایا کہ اے انسانوں، اس دنیا کے اندر تم رہتے ہو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اندازہ لگائیے محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا؟ جس آنکھ سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کتنوں بھی پیسہ دے کر کے خریدنا چاہے تو ایسی نعمت نہیں مل سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرے بندو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اگر سمندر کے پانی کو دوات بنا لیا جائے. دوسری جگہ سورہ لقمان آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم نے جو نعمتیں اور جو احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، ان نعمتوں کو اگر تم لکھنا چاہو، ان احسانات کو اگر تم لکھنا چاہو، قرآن کہتا ہے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، تم جس زمین کے اندر رہتے ہو، جس ملک کے اندر رہتے ہو، وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں، لیکن اس ملک کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کی زمین کی بات کر رہا ہے کہ پوری زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو تم قلم بنا ڈالو. غور کیجئے محترم ناظرین، ذرا سوچئے، قلم بنا لیا جائے. پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں؟ ہمارے سوچ کے مطابق ہم صرف جس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی کو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لیا جائے، اور قلم بنانے کے بعد
اللہ فرماتا ہے समंदर जिसको तुम देखते हो, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, उस समंदर के पानी को रोशनाई बना ली जाए। और फिर अल्लाह फरमाता है आई मेरे बंदो, रोशनाई उस समंदर को ही नहीं बल्कि उस जैसे 7 समंदर और मिला लिया जाए। उसके बाद अल्लाह के एहसानात को लिखना शुरू करो, अल्लाह के इनामात को लिखना शुरू करो, जो नेमतें अल्लाह ने दी है। ये कलम खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की बातें और अल्लाह ने जो नेमतें दी है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तसव्वुर करें, अल्लाह ने इतने एहसानात किए, लेकिन इनके बाद इनके अलावा अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों का किसी के बारे में नहीं कहा ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया है, मैंने आंखें दी है तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमने 2 हाथ तुम्हें दिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमने 2 पैर तुम्हें अता किए हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, माल दिए, औलाद दी, और इसी तरीके से जिंदगी, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने शोहरत और तमाम चीजें अल्लाह ताला ने तुमको दी है। अल्लाह ताला ये कहीं नहीं फरमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, लेकिन एक एहसान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर किया है। उठाइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फी अनफुसिहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है आए मेरे बंदो, मैंने तो किसी एहसान का तुम्हारे पर जिक्र नहीं किया है, किसी एहसान के बारे में हमने तो तुमको बताया नहीं, लेकिन एक ऐसा एहसान मैंने तुम्हारे पर किया है जिसको मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तुम जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, हराम और हलाल की तमीज तुम्हें मालूम नहीं थी, तुम दुनिया के अंदर थे, चलने का तरीका पता नहीं था, तुम सोने का तरीका तुम्हें मालूम नहीं था, कैसे शादी करोगे ये भी तुम्हें तरीका मालूम नहीं था, मरने के बाद क्या होगा ये सारी चीजें तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम, कि तुम ही में से मोमिनीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम ही में से एक रसूल को भेज दिया। जरा तसव्वुर करें, अल्लाह तबारक व तआला सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाता है वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तुम ही में से मिन अनफुसिहिम, जैसे तुम हो वैसे वो रसूल थे, तुम्हारे 2 पैर तो उस रसूल के भी 2 पैर थे, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं तो उस रसूल के पास भी 2 हाथ थे, तुम चलते हो वो भी रसूल चला करते थे, तुम बाजारों में जाते हो वो रसूल भी बाजारों में जाया करते थे, तुम्हारी शादियां होती है उस रसूल की भी शादियां हुई थी, तुम्हारे औलादें हैं उस नबी की भी औलादें थी, उस नबी को तुम्हारे दरमियान भेजा और भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो नबी तुम्हारे दरमियान आया युज़क्कीम, जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से पाक करते हैं। कितनी बड़ी बात है, नबी तुम ही में से भेजा, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम्हारे जिन्स से जैसे तुम वैसे वो, लेकिन फर्क ये है कि रसूल तो रसूल, उनका मकाम और मर्तबे का क्या कहना। कुरान करीम उस रसूल के ताल्लुक से फरमाता सूरह कहफ उठाइए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, लेकिन फर्क ये है यूहा इलैया, मेरे तरफ वही नाजिल की जाती है और तुम्हारे तरफ वही नाजिल नहीं की जाती है। मेरे पास हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं और तुम्हारे पास हजरत जिब्राइल अमीन नहीं आते हैं। मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला की किताबें उतारी गई, किताब उतारी गई है, और तुम्हारे पास अल्लाह की किताब उतारी नहीं गई है। फर्क यही है मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो। कुफ्फार मक्का अल्लाह के रसूल को अल्लाह के रसूल इस वजह से नहीं मानते थे, गौर करने की बात है, रसूल को रसूल इस वजह से नहीं मानते थे,
कुफ्फार मक्का वो ये कहा करते थे, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़, अरे हम इसको रसूल कैसे मान लें, इसको हम रसूल कैसे मान लें, ये तो हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता है। क्या हमारी तरह बाजारों में चलने वाला, बाजारों में टहलने वाला, हमारे तरह खाना खाने वाला, हमारी तरह शादी ब्याह करने वाला रसूल हो सकता है? पहले के लोग कुफ्फार मक्का रसूल को रसूल इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि वो बाजारों में चलते थे, वो शादियां करते थे, वो लोगों के साथ रहा करते थे, उनकी वो तकलीफें पहुंचा करते थे। पहले के लोग रसूल को रसूल नहीं मानते थे क्योंकि उसको इंसान तस्वुर करते थे। लेकिन आज के मुसलमान कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो रसूल को रसूल तो मानते हैं लेकिन इंसान नहीं मानते हैं। अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और लोगों की बातों को खत्म कर दिया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह एक इंसान है, तुम्हारी जैसा एक इंसान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां, मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां। बेटी राहत बनी और बहन शफ़क़त, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत। आदम की बेटियां, शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम, हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी आपसे मुखातब हूँ। हिंदुस्तान में इस वक्त तमाम मज़ाहिब के अपने अपने चैनल चल रहे हैं, एक नहीं अनेक, लेकिन दीन इस्लाम की तालीम, तबलीग और बात फैलाने वाला चैनल, और वो भी बिला कास्ट, फ्री, सिवाय i+ के कोई दूसरा चैनल नहीं है। ये चैनल इस्लाम की सीधी सच्ची बात बग़ैर लगाव लपेट के आप तक पहुंचाता है। ऐसे प्रोग्राम जो आप सारे घर के लोग बैठकर एक साथ देख सकते हैं। ज़माना जैसे तरक्की कर रहा है उसी एतबार से हमें आपको इस बात का एहसास है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से उन चैनलों से जो मुखर्रिब अखलाक हैं, जो हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं, उनके अखलाक, उनकी तहजीब छीनते हैं, कैसे दूर रखें, और दीन की बात अपने बच्चों तक, नौखेज़ नस्ल तक, नौजवानों तक, ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक कैसे पहुँचाएं। ये चैनल ये काम करता है बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में, अच्छे मोतबर उलमा के ज़रिए। आप तमाम हज़रात को इस बात का ज़रूर एहसास होगा, महंगाई आसमान को छू रही है, किसी चैनल के चलाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो इस चैनल के ज़िम्मेदारों ने अपने सर ले रखी है। मैं इब्तिदा से इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप तमाम हज़रात से अपील करता हूँ कि आप हज़रात भी इसके सिलसिले में सोचें और इसके ताउन के सिलसिले में भी सोचें और दीगर लोगों तक इसके पैगाम को पहुँचाएं। लोगों से कहें कि इसको देखें। अगर आप टीवी देखते हैं तो i+ देखिए, i+ देखिए, जो आपकी दीन दुनिया, दीनी ज़रूरतें, दुनियावी ज़रूरतें सारी पूरी करने की कोशिश करता है। अगर आपकी दिलचस्पी कायम रही तो मज़ीद इसमें दिलचस्प, बेहतर, अच्छे और समाजी ज़रूरतों के प्रोग्राम शामिल किए जाएंगे। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इसके पैगाम को आम करने के लिए आगे बढ़कर आइए। इसका दामे दरमे सुखने कलमे हर तरह से ताउन करें ताकि ये पैगाम घर घर पहुँचे और दर दर पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसके ज़िम्मेदारों को हिम्मत और हौसला दे कि वो हौसला शिकन हालात में भी मजबूती के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ खड़े रहें और इस पैगाम को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें। परवरदिगार हमारी कोशिशों को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़े।
i+ TV के सपोर्टर बनने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। देखना ना भूलें ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। तो बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को भेज करके। अब अंदाजा लगाइए, युज़क्कीहिम, वो तुम्हें गुनाहों से पाक करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए मोहतरम नाज़रीन, जब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब के सरजमीन के अंदर आए तो वहां पे कितनी ज्यादा बुराइयां पाई जा रही थी, इतनी ज्यादा बुराइयां। उठाइए तारीख की किताबों को देखिए, इतनी ज्यादा बुराइयां पाई जा रही थी, इतनी ज्यादा बुराइयां पाई जा रहे थे कि लोग अपनी बच्चों को गाड़ दिया करते थे। अंदाजा लगाइए वो कितने सख्त दिल वाले थे। आप अपने बच्चों को जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, गरचे वो दिखने में अच्छी ना हो, उनके पास आंखें ना हो, पैर ना हो, उनके पास हाथ ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को जमीन के अंदर गाड़ेंगे नहीं। अरब के अंदर ये बुराइयां पाई जाती थी कि वो लोग अपने बच्चों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। और कुरान ने इसका नक्शा अजीब अंदाज में खींचा है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनमें से किसी को ये बशारत देते थे कि सुनो तुम्हारे घर के अंदर लड़की पैदा हुई है, तुमको अल्लाह ताला ने लड़की अता किया है, तो वो आदमी मारे शर्म के अपने घर के अंदर चला जाता था, घुस जाया करता था, लोगों से बातें नहीं करता था, शर्म के मारे अपने घर के अंदर घुस जाया करता था। इसी तरीके से अरब की सरजमीन के अंदर ये भी बुराई पाई जाती थी। लोग शराब इस तरीके से पीते थे जैसे आजकल हम लोग पानी पिया करते हैं, लोग उसी तरीके से शराब पिया करते थे। इसी तरीके से लोग आपस में जुआ खेला करते थे और ज़िना के मामले में इतने ज्यादा आगे, इतने ज्यादा आगे, कोई आदमी अगर ताकतवर हुआ करता था तो किसी को पकड़ करके गलत काम भी कर लिया करता था, वहां पे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। इससे बढ़कर की जो सबसे बड़ी बुराई पाई जाती थी वो बुराई ये थी कि जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया उस अल्लाह को छोड़ करके ये इंसान एक माबूद की नहीं, दो की नहीं, तीन की नहीं, चार की नहीं, उसी खाने काबा के अंदर जहां पे लोग आज हज करने के लिए जाते हैं, उसी खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी गई थी और 360 मूर्तियों की लोग इबादत क्या करते थे। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए तो अल्लाह फरमाता वयुज़क्कीहिम, उस नबी ने इन तमाम बुराइयों से पाक कर दिया, लोगों को ज़िना से दूर कर दिया, शराब से दूर कर दिया, जुआ से दूर कर दिया, लोगों को ये कह करके बता करके लोगों से कह दिया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये लड़की रहमत है, रहमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्न लहू सितरम मिनन नार। इस हदीस के ऊपर जरा गौर करें मोहतरम नाज़रीन, जरा सोचें कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कियों को जिंदा दरगोर करने की दूर की बात है, अगर कोई आदमी लड़की को सही तौर पर अगर तरबियत दे देता है और उसको शादी कर देता है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर दो लड़कियों से किसी को आजमाया गया कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो यही लड़कियां जहन्नम कि जाने से उसको बचा लेंगे, ये आड़ बन जाएंगी। अल्लाह से कहेंगी कि अल्लाह ये हमारे बाप हैं, अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मुझे तरबियत दी थी, या अल्लाह इसने मुझे दुनिया के अंदर इस्लाम सिखाया था, अल्लाह इसको जहन्नम में जाने ना दो। जरा अंदाजा लगाओ मोहतरम नाज़रीन, जरा गौर करने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी के जरिए से लोगों को गुनाहों की दलदल से खत्म कर दिया, गुनाहों से घटा दिया। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, लेकिन फिर भी इंसान इन नेमतों के बारे में सोचता नहीं है, इंसान इन नेमतों के बारे में गौर फिक्र नहीं करता है। अगर दुनिया वाला कोई एहसान कर दे तो बस उसी चक्कर में लगा रहता है। जरा देखिए, अगर ससुराल वाला कुछ दे दिया
تو اسی کا گن گاتا ہے, اسی کی تعریف ہمیشہ کرتے رہتا ہے. اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے اور بندہ اس کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا ہے. غور کیجئے, اللہ فرماتا میرے بندو یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اور ان نعمتوں کے تعلق سے ہم تم سے پوچھیں گے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, آئے میرے بندو ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا, تم سے کوشچن کیا جائے گا. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کے بارے میں پوچھے گا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کان کے بارے میں سوال کرے گا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دونوں قدموں کے بارے میں پوچھے گا. اندازہ لگاؤ, غور کرو, ہم اپنے جسموں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں, آنکھوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ہم اپنی نگاہوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک, اے اللہ میں تیرا ذکر کر سکوں, اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں, جو نعمتیں تو نے دی ہے ان نعمتوں کا میں صحیح طور پر شکریہ ادا کر سکوں. اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے وحسن عبادتک, اور میں تیری اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں. نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, لیکن آج ہم لوگوں کو ان نعمتوں کا ذرہ برابر احساس تک نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے یہ دنیا ہے, یہ دنیا کے اندر جیسے چاہو زندگی گزار لو, موج مستی کر لو اور اپنے جسم کا, اپنی آنکھوں کا, اپنے دل کا جیسا چاہو ویسا استعمال کر لو. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, اے لوگو حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے, حساب و کتاب کا وقت تمہارا قریب آ گیا ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ذرا اندازہ لگاؤ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بیٹا ایگزام کے وقت ہمیں کھیلتا کودتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے, میرے بیٹے ادھر آؤ. بیٹا آتا ہے, کہتا ابو کیا بات ہے, بیٹا کہتا ابو کیا بات ہے. باپ کہنے لگتا میرے بیٹے سنو, تم کو میں نے پڑھایا, تم کو میں نے نہ جانے کہاں کہاں ٹیوشن لگوایا اور کہاں سے پیسے میں نے اکٹھا کر کے تمہارے ٹیوشن کے پیسے دیے, ہم نے کالج میں پیسے, ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ پیسے دیے. اب تمہارے ایگزام کا وقت قریب آ گیا ہے, امتحان کا قریب آ گیا ہے, لیکن اب تم کرکٹ کھیل رہے ہو, تم گیم کھیل رہے ہو, تم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے ہو, تم بازار جا رہے ہو, کل تمہارا امتحان ہے, تم تیاری نہیں کر رہے ہو. باپ رو رو کے اپنے بیٹے کو کہتا میرے بیٹے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, چلو تم تیاری کر لو. ذرا اندازہ لگاؤ اس اللہ کے بارے میں سوچو جو اللہ باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے, اسی محبت کو مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, ہم نے تمہیں یہ دنیا دی ہے, ہم نے تمہیں اولادوں سے نوازا ہے. اے میرے بندو ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے, اے میرے بندو یہ ساری نعمتیں ہماری دی ہوئی ہے, لیکن مجھ کو تم بھول گئے ہو, تم سوچتے نہیں ہو مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا, حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا. اور یہ سنو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, اے لوگو تمہارا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے, تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ ہماری نظر میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے جانتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوں, جن کے پاس بلڈنگیں ہوں, جو ہر شہر کے اندر گھر بنایا ہوا ہو, اور جس نے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو
बैंक बैलेंस जमा किया उसको हम अक्लमंद समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है अक्सरुम लिल मौत ज़िक्रन, जो तुम में सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो, आखिरत को याद करता हो, आने वाली जिंदगी को याद करता हो। हकीकत में अक्लमंद आदमी वही है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अक्लमंद करार दिया है। गौर करने की बात है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अमीर आदमी को अक्लमंद नहीं कहा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को अक्लमंद नहीं कहा। जो आदमी दुनिया के अंदर पायलट चलाता हो, दुनिया के अंदर हर जगह घूमता हो, उसको अक्लमंद नहीं कहा। झोपड़ी में क्यों ना रहता हो, लेकिन वो अपने आखिरत को याद करता हो, मौत को याद करता हो। तो याद रखो मुसलमानों, सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही अक्लमंद है जो मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता हो। हकीकत में अक्लमंद आदमी वो है, हकीकत में होशियार आदमी वो है जो इस दुनिया के अंदर रहे और उस दुनिया की तैयारी करे, यहाँ रहे और उस दुनिया की फिक्र में लगा रहे। आजान का वक्त हो, आजान सुने और फौरन अपने घर को छोड़े मस्जिद की तरफ चला जाए, गुनाह करे, गुनाह के बाद फौरन तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से अंदाजा लगाओ। मुसलमानों सोचो तो सही, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर दिए हैं। आपने फरमा दिया है अक्लमंद आदमी वही है जो इस दुनिया के अंदर रह कर के आखिरत की तैयारी करे। अंदाजा लगाइए इन तमाम अहादीस और इन तमाम बातों से कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें दी है, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इन नेमतों का इस्तेमाल हमें अल्लाह के लिए करना चाहिए। ये दुनिया है, दुनिया के अंदर रहिए ज़रूर, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सही मानों में इस दुनिया के अंदर रह कर के आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसानात किए हैं, इन एहसानात का सही मानों में हमें शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जब आज़ान हो, कोई भी काम करें, आज़ान सुन करके हमें मस्जिदों की तरफ जाने की हमें तौफीक अता फरमाए।